What did No Broker do differently? We made it into a one-stop shop. So now we are one app for all your property needs. Tell us about the very horrifying office incident in 2015. हम मडी वाला पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जीप में साथ में 2 पुलिस वाले और पीछे 40 बाइक आ रही है. Oh God. मैं जीप में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार हम क्यों बैठे हुए हैं जीप के अंदर. What were some of the biggest problems that you guys were facing? कोई भी हमें पैसे देने को तैयार ही नहीं था. Lot of people said कि नहीं, हम तो हमेशा ब्रोकर यूज करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. एक जगह गए, उन्होंने बोला यार अपना नाम चेंज कर लो, तो अगर आप नाम चेंज कर लोगे तो हम आपको $1 मिलियन. Is the Indian youngster really not interested to buy a house anymore? So we see that almost 50% people who are now buying a house are actually these millennials. Which cities in India currently, वहाँ घर खरीदना is the most profitable? Bangalore is one big city where a lot of growth has happened. Hyderabad is another one. We are India's first PropTech unicorn, but it's just 10 years. There's a lot more lined up. There's a lot more planned. Tell us about some of those plans. I've lived in 4 cities in the last 9 years and done multiple city shifts for work. So many house shifts within the cities too. The first thing anyone tells me when I ask them to help me find a new house is, "Arey bro, look on No Brokers na." Every city, the last decade, same statement. That's the goodwill that this startup has earned in the last 10 years across the nation. Welcome to the latest episode of The Hot Seat Guys by AIM Media House. Today we are speaking to Saurabh Garg, co-founder and CBO, and Akhil Gupta, co-founder and CTO of NoBrokers.in. I gotta tell you, this is by far one of the most outrageously fun and entertaining chats I have had in my podcasting career. Not to mention, extremely enlightening and inspiring for all the young entrepreneurs out there. So guys, brace yourselves and watch till the very end for an advice on how you can solve grassroots problems and build a multi-million-dollar company at the same time. Akhil, Saurabh, welcome to the Hot Seat by AIM Media House. कैसे आप दोनों? How are you guys? वेरी गुड. Doing good. Yeah? चलिए, lovely. The first question of the podcast, जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, for my work in the last 9 years, मुझे भारत देश के multiple शहरों में रहना पड़ा है. And whenever I have shifted to a new city and asked co-workers कि please help me if I can get a place because घर लेना है rent पे, the first answer that I've got is check on No Brokers. When you guys started off 2013 में 2014 में officially, when that start happened, ये सोचा था आप लोगों ने 10 years down the line this is what the country is going to be like? देखिए, नो ब्रोकर का स्टार्टिंग ही ऐसे हुआ था कि हमें लगता था कि बहुत प्रॉब्लम है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो जिससे भी बात करी उसने बोला कि यार घर रेंट पे लेना, घर खरीदना बहुत ही मुश्किल काम है. तो हमारा आइडिया यही था कि कैसे हम इसे सिंपल कर सकते हैं. हमें तो हमेशा से यही लगता था कि हम इसे बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं. हमें लगता है हमें कुछ सक्सेस मिली है, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. वी जस्ट स्क्रैच द सर्फेस. So the problem that you guys were trying to solve, I heard from a lot of your former interviews as well, some really interesting stories of very bad broker experiences that led to this. So tell us one or two of those. मैं उस टाइम बॉम्बे में रहता था, अब मुंबई बोलते हैं उसको. एंड उस टाइम पर मैंने अपना जॉब छोड़ा था एंड उस जॉब में मेरे को घर मिलता था. सो आई यूज्ड टू लिव इन अ हाउस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. बिफोर दैट आई वाज इन कैंपस, तो मैं हॉस्टल में रहता था. पहली बार ब्रोकर से आमना सामना हुआ एंड वो एकदम आमना सामना ही था, क्योंकि समझ में आया कि पूरा एक्सपीरियंस एकदम ही ख़राब है. पहले उसने एकदम ख़राब घर दिखाए. जब मैंने बोला कि नहीं मैं ये नहीं लूँगा, तो उसने फिर थोड़ा ठीक से घर दिखाने स्टार्ट करे. और एकदम ही इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कि सर आपको आज ही क्लोज करना है, अगर आप आज नहीं बताओगे तो कोई दूसरा आदमी ले जाएगा. Exactly. That's exactly what they Gun do, to right? your head. तो इतना खराब एक्सपीरियंस था. एंड उसके बाद कुछ भी करके मैंने कहा चलो यार खत्म करते हैं, एक घर लेना, लेट्स जस्ट क्लोज इट. सो आई पेड ब्रोकरेज इन क्लोज दैट अमाउंट. बट 11 महीने बाद वो ब्रोकर वापस आ गया. कहता आप तो रिन्यू कर रहे हैं ना एग्रीमेंट, आपको ब्रोकरेज वापस देनी है. मैंने कहा बॉस ये क्या मतलब हुआ? एंड यू नो दैट इज अ टाइम व्हेन आई बुक दिस डोमेन नेम एंड सेड कि बॉस this needs to be solved. So that was 2007. And for me, when I moved to Bangalore, I'm in Bangalore for the last 19 years now. So I joined my brother who was staying here. तो एक अपार्टमेंट ले रखा था, उसमें ज्वाइन कर लिया. 2005 से 2010 तक वहाँ निकल गया. जब शादी हुई और घर ढूंढना था, तो मैं और मेरी वाइफ एंड फियांसे दैट टाइम वी वर लुकिंग फॉर अ हाउस की 2 BHK रहते हैं. तो निकले ढूंढने,
सबसे पहले यही लगा कि पैसा क्यों देना है। देखिए हम लोग तो बनी है पीछे से, तो अग्रवाल है, तो मतलब पैसा क्यों देना है। तो ढूंढा, कहीं पे मिला नहीं। मुझे आज भी याद है सन सिटी पे भी मैं आया था, नहीं है। सब जगह ब्रोकर से बात हो रही है, ब्रोकर बोलता है कोरमंगला में आपको बढ़िया 2 BHK दिलाता हूँ। मुझे लगता था कोरमंगला में 2 BHK है कहाँ जो दिलाएगा वो मुझे। तो लेके गया, एक 1 वे वाली गली थी, छोटी सी गली, उसके अंदर 2nd फ्लोर के ऊपर एक कोपचा सा बना हुआ था, सीढ़ियाँ थी एकदम पतली सी, मतलब उस सीढ़ी पे आप कभी भी गिर जाओ, कवर्ड भी नहीं था। वो था फर्स्ट एक्सपीरियंस। Although I could find a house in 2010 without a broker by directly connecting via some group and all those things, Yahoo group and all. But the day Saurabh pitched me कि यार इस तरीके का कुछ करना है, it was like a eureka moment कि हाँ यार ये तो करना चाहिए, we know this is a very big problem. Talking about the very big problem, when you guys started off and I was doing research and I found out the way the initial onboarding of flat owners and landlords happened seemed very extremely physical and a tedious task to me. तो उसके बारे में जरा बताइए। तो बेसिकली देखिए, आप कोई भी चीज़ अगर नहीं करेंगे ना, नया कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको समझाना पड़ेगा। आप इंडिया क्या, आप दुनिया में देख लो, घर ब्रोकर के थ्रू ही मिलता है। ब्रोकर को पैसा देना पड़ता है। अब 1 महीना हो, 2 महीना हो, 2% 3% तो पैसा देना पड़ता है। पीपल आर यूज टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जब हमने नो ब्रोकर स्टार्ट किया, हाउ डू वी टेल ओनर कि बॉस आप प्रॉपर्टी लिस्ट कर दीजिए, डिटेल दे दीजिए, आपको सिर्फ जेन्युइन टेनेंट ही कनेक्ट करेंगे, आप जब बात करेंगे आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो हम क्या करते थे कि जो टूलेट बोर्ड लगे हुए हैं, तो जनरली हम भी पैसा नहीं देना चाहते एज ओनर, तो लोग बाहर टूलेट बोर्ड लगा देते हैं और ये नंबर होता है, उसके फोटो ले लेते थे। ये बॉम्बे में थे उस समय, मैं बैंगलोर में था, तो मैं बैंगलोर के कर लेता थे, बॉम्बे के कर लेते थे, फोटो लेते थे, घर आते थे, कॉल करते थे और समझाते थे उनको, सर हम IIT IIM से हैं, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अब देखिए इंडिया में अगर आपका 20,000 30,000 रुपये बचता है और आगे से आपको कोई चीज़ बताए, लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम ट्राई करेंगे। तो वो था तरीका। एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक वी ग्रुप्स। आल्सो यूज्ड क्लासिफाइड में इसने ऐड डाला है, उसको कॉल कर रहे हैं और उसका लिस्ट करने की कोशिश कर So a lot of cold calling then. लॉर्ड लाइक मुझे आज भी याद है फेसबुक ग्रुप्स होते थे। फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जाके मैं नो ब्रोकर की URL डालता था कि यार यहाँ पे ये फ्लैट विदाउट ब्रोकरेज अवेलेबल है, और उसी समय पे साइट में गूगल एनालिटिक्स खोल के रखता था। जब हमारी साइट पर ट्रैफिक होता था 2-3, फेसबुक पे डालते ही वो सीधा हो जाता था 100, और 100 होता था, ऐसा लगता था कि यहाँ क्या अचीवमेंट की है, 100 लोग एक साथ हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं। Small victories. क्या बात है। You start with those, right? Yes. When I was doing research and I got to know of this, मतलब मैं envision नहीं कर पा रहा था कि वो moment आप लोगों के लिए कैसा होगा। Tell us about the very horrifying office incident in 2015. We had a small office in HSR layout. हमने एक बंगलो टाइप ऑफिस लिया था। We said कि it's starting a company to build a culture, let's have a more intimate office. तो उस तरह का हमारा ऑफिस था और हम लोग वहाँ पे थे and we noticed that some 40-50 people were going in a procession coming towards the office. तो हमें लगा कि religious procession होगा, ऐसा चलता रहता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो लोग हमारे डोर पे आ गए, हमारे डोर को बैंग कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। And we realized there were 50-60 brokers who were coming and trying to hurt, कि सब तोड़ देते हैं, इनके सारे लैपटॉप तोड़ देंगे तो वेबसाइट रुक जाएगी। People didn't know the concept of cloud. क्योंकि उस समय तो क्लाउड होता ना कि अगर पानी टपकेगा तो आपकी वेबसाइट खराब हो जाएगा आपको। तो काफी हॉरिफाइंग था कि उसमें एकदम इतने लोग आ गए हैं और सब हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Did they have something हाथों में? उनके हाथी बहुत थे। पर हम लोग भी काफी नए थे कि हमने कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं था कुछ हमारे पास कोई CCTV कैमरा नहीं था। हमने कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा। हमें लगा कि यार हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। 50 आदमी आ गए। आई रिमेम्बर कॉलिंग 100। फिर एक कांस्टेबल आया, एकदम एविएटर पहने हुए थे, ऐसे खड़ा हो गया, बोलता है रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। बोला सर ये हम आ रहे हैं, देखो। मतलब नहीं पहले ये दिखाओ। फिर बोलता है चलो गाड़ी में बैठो। तो हौसाला होती है, तो उनकी जीप होती है, मुझे अमित को बिठाया, हम लोग बैठ के निकले हैं। हम मडीवाला पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हम देख रहे हैं हम जीप में, साथ में 2 पुलिस वाले और पीछे 40 बाइक आ रही है। Oh God. तो मैं जीप पे बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार हम क्यों बैठे हुए हैं जीप के अंदर। मैं यही सोच रहा था, अटैक उन लोगों ने किया और जीप पे आप लोग बैठे थे। हम लोग जीप पे बैठे हुए थे। बट वो जो SI थे मडीवाला पुलिस स्टेशन, लाइक अमेजिंग गाय, मतलब आई डोंट रिकॉल द नेम, बट he blasted those brokers like anything. He gave very relevant example. He gave example of Flipkart. क्या Flipkart आज ऑनलाइन कोई चीज़ बेच रहा है
तो क्या दुकान वाले जाके उनके ऑफिस को तोड़ेंगे? व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर ट्राइंग टू डू? Although it was very scary, then he told, and obviously we were working out of a bungalow, तो हमारे पास शॉप पैक नहीं था, फिर तो 25 चीजें हो जाती हैं, तो we had to vacate that office very night itself. और नेक्स्ट 2 महीने फिर हमने फ्लोर पे बैठ के एक छोटे से घर के अंदर से काम किया, गद्दों के। बहुत बहुत अमेजिंग मेमोरीज है। वाओ, हमें रियलाइज हुआ कि हम कुछ तो कर रहे हैं जिसका कुछ सही impact कर हो रहे रहा है, कुछ तो कर रहे हैं सही जिसका इम्पैक्ट हो रहा है। और दूसरा जो पूरी टीम है, that started believing a lot in what we were doing, that we are making a difference, we are doing what the vision was, कि हम eliminate कर रहे हैं brokerage, इसीलिए reaction आ रहा है। So I think that was quite a good thing coming out of that. मुंबई का रेंट सबसे ज्यादा क्यों है? तो बॉम्बे ना एक यूनिक सिटी है कि वहाँ पे लैंड की कमी सबसे ज़्यादा है। बिकॉज लुक एट बैंगलोर, यू नो इट्स एक्सपैंडिंग नाउ, इट्स एक्सपैंडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इट्स एक्सपैंडिंग टुवर्ड्स साउथ, हर डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है। बॉम्बे में एक्सपैंड करने की जगह ही नहीं है, सो इट्स वेरी लिमिटेड स्पेस एंड दैट्स द रीजन द प्रेशर ऑन लैंड इज वेरी हाई। सो इफ यू लुक एट per square feet, the number of people is the highest in Bombay city. And that's the reason that the rent is so high. Bombay में actually rental yield is lower than Bangalore. So Bombay में rental yield 1.5 से 2.5% है, जहाँ की बैंगलोर में वो 2 से लेके 4% के बीच में तक आ जाती है। तो बैंगलोर इज हायर रेंटल yield in that way. लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि बॉम्बे में अगर आप रह रहे हैं तो आपको अगर कम पैसे में घर खरीदना है या रेंट पे लेना है, आप थोड़ा दूर जा सकते हैं, आप थाने जा सकते हैं, आप मीरा रोड जा सकते हैं और वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आप सोचिए सिटीज लाइक गुड़गांव, वहाँ पे अगर आपको घर खरीदना है, यू नो देयर इज नथिंग व्हिच यू कैन गेट बिलो 2 or 2.5 crores. On the platform there was no money coming in the first 2 years क्योंकि Yes. पेमेंट का तो ऑप्शन ही नहीं था, Yeah, right? you're right. And there was no investment coming in either. As a matter of fact, initial काफी सारा investment आपका was not from India, was from overseas, if I'm not wrong, Not correct? initially, Hmm. हमने पहला चेक लिया हमने एलिवेशन से, Hmm. that came in, and उसके बाद हमने सेकंड चेक जो लिया था which was not from India, which was a Japanese. Japanese investor and then a Korean investor. So I want to ask about that first check that came in. Yeah. What were some of the biggest problems that you guys were facing when these investment meetings were happening before the first check came in? Yeah. So I think we tried almost for this 9-10 months to raise money, but कोई भी हमें पैसा देने को तैयार ही नहीं था। Because everybody said कि ये क्या बिजनेस है जिसमें कि जो कि ना तो यूएस में चलता है ना चाइना में चलता है। लॉट ऑफ पीपल सेड कि नहीं हमारी बहुत प्रॉपर्टीज हैं और हम तो हमेशा ब्रोकर यूज करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वी कुडंट कन्विंस देम कि बॉस आप ना 0.1% ऑफ इंडिया हो तो आपको अच्छा ब्रोकर मिल रहा है जो एकदम प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ काम कर रहा है। 99.9% लोगों को ऐसा नहीं मिलता है। आई थिंक टुक लॉट ऑफ टाइम टू कन्विंस इन दैट। ऐसा भी हुआ है, एक जगह गए, उन्होंने बोला यार अपना नाम चेंज कर लो, आप नो ब्रोकर नहीं चलेगा, आपको आगे जाके ब्रोकर के साथ काम करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप नाम चेंज कर लोगे तो हम आपको $1 million देंगे। Oh हम उस wow. मीटिंग में से उठ के आ गए थे कि हम नाम नहीं चेंज। होल आइडिया इज दिस इज द थीसिस, दिस इज द एथोस ऑफ द कंपनी, हाउ कैन वी चेंज द नेम? तो ऑल दोस थिंग्स हैव आल्सो हैपेंड। ये सब मेहनत के बाद एक दिन हमें लगा कि अब ना हमें पैसे मिलने वाले हैं। I tell us about this story. It's a very interesting story and there are 3 beers involved. Yeah, please tell. हमें लगा कि पैसे मिलने वाले हैं अभी, और क्योंकि हमें 3 इन्वेस्टर ने बोला कि हम आपको कल टर्म शीट देने वाले हैं। तो हमने कहा यार ये तो सही हो गया है। हम लोग गए वहां से और हमने जाके बियर पी लिया। Bartles, तो Bartles. पीता भी नहीं है बियर। किसने भी पी ली? मैंने जीवन में एक बार बियर का आधा मतलब 2 4 5 सिप पिए, वो उसी दिन था। बार्लेस करके है सोनी वर्ल्ड जंक्शन पे, अब तो नहीं है। वहां पे बोला अरे क्या है ये, तो है अब तो पैसा आ ही गया है, सेलिब्रेट तो करना बनता ही है। तो हमने एकदम दिन में जाके पूरा सेलिब्रेट कर लिया। फिर रात को जाके सो गए, सुबह उठे और मैंने खोला न्यूज़पेपर, तो उसमें फ्रंट पेज पे न्यूज़ था, हाउसिंग हैज रेज्ड $90 million फ्रॉम सॉफ्टबैंक। housing.com. Yeah. And suddenly all the 3 investors vanished. Oh boy. They said, एक ने तब ये बोला कि नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको, नाम के बिना काम नहीं होगा। एक ने बोला हमें लगता है इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट ही बहुत छोटा है। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट छोटा मार्केट ही बहुत छोटा है। और एक ने बोला कि यार रियल एस्टेट हैज बीन वॉन, सॉफ्टबैंक ने इस पे पैसा डाल दिया, अब तो ये हो गया, housing.com है, दे हैव वॉन द बैटल विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो वी आर थिंकिंग अबाउट इट। आप अग्रवाल है, आप तीनों बनिया है, घर में ही बचपन में ही ये मैंने नोटिस किया है कि मेरा भी दोस्त था आशिक अग्रवाल,
उसके घर पे जो बातचीत ही होती थी वो बिजनेस की होती थी बैक इन मेरे स्कूल डेज 2005-2006 और मैं बंगाली हूँ कलकत्ता का रॉय हम अगर बिजनेस की बातचीत भी करें तो ऊपर से ऊपर बिल्कुल नहीं ना बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है नौकरी करो गेट सैलरी एंड बी सेफ ये व्हाट इज दिस माइंडसेट दैट इज देयर इन द बनिया माइंडसेट गुजरातीज एंड मरवाड़ीज ये कहाँ से आता है जो आप लोग सीख जाते हो मेरे तो घर में बिजनेस ही है तो बेसिकली फोर फादर्स सो वी हैव बीन ग्रेन मर्चेंट्स और मेरे जो दादाजी थे वो सेठ वेठ थे एंड ऑल दोस थिंग्स तो मुझे तो बचपन से ही याद है कि पापा बिजनेस से जो भी बिजनेस कर रहे हैं रात में ही कम्स बैक विद द कैश तो हमें तो ये नोट ऐसे 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 गिनने के बचपन से आदत है मतलब ऐसे पापा बोलते थे गिनो इनको टक 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 क्या बात गिन के देते थे ये तो और फिर आई स्टिल रिमेम्बर वंस डेथ हैपेंड इन आवर फैमिली तो माय मॉम एंड डैड वर देयर हमारा जो शॉप था देयर वाज ऑयल बिजनेस तो वो शॉप पे बैठा हुआ था पापा वहाँ पे गए हुए थे बंदा आया उसने बोला कि ये पैसा है बैंक से चेक निकालना है मैंने पापा की चेक बुक निकाली पापा का साइन करके चेक दे दिया पैसा निकाल लिया सो दिस वाज व्हेन आई वाज इन 7th और 8th क्लास तो आई थिंक वो जीन्स में ही है मतलब this is how at least I have seen back home. While you guys started, there were a few more platforms also coming up. Housing.com, जिसके बारे में हमने बात भी की. There was Makaan.com, if I'm not wrong. काफी ऐसे प्लेटफॉर्म्स उसके बाद भी प्लेयर्स आए काफी चले भी गए what did No Broker do differently that you guys didn't just stand the test of time but you guys were able to thrive what did you guys do different नाम चेंज नहीं किया नाम चेंज नहीं किया सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म विच इज विदाउट ए ब्रोकर एवरीबडी एल्स हाउसिंग मकान ऑल ऑफ देम आर ब्रोकर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स बट आप ये सोचिए कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है कस्टमर की प्रॉब्लम है कि मुझे घर लेना है चाहे रेंट करना है चाहे खरीदना है लेकिन ब्रोकरेज नहीं देना इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं चाहिए मेरे को वो जैसे वो था कि आज ही क्लोज करो उस तरह का प्रेशर नहीं चाहिए पीपल वांट ट्रांसपेरेंसी घर दिख रहा है तो घर अवेलेबल होना चाहिए जो इन सब साइट्स पे नहीं होता क्योंकि ब्रोकर पुरानी इन्वेंट्री जिस घर के फोटो अच्छे होते हैं वो डाल के रखते हैं फेक घर डाल के रखते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं क्योंकि ब्रोकर का काम क्या है उसे आपसे कनेक्ट करना है आपसे बात करनी है फिर आपको बोतल के अंदर उतारना है उसको हमारे यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन क्लोज कराना है आपके पैसे बचाने और जल्दी से जल्दी ट्रांजेक्शन क्लोज तो वी आर एक्सट्रीमली कंज्यूमर फ्रेंडली दैट वे And I think second thing which I will say is that we also listen a lot to the consumers. क्योंकि हम consumers का directly काम कर रहे हैं हमारा कोई ऐसा B2C business नहीं है it's a C2C platform. So we speak to a lot of customers, we interact with a lot of customers and that's where we learned a lot of things. For example, when we started we were only कि आप हम रेंट करते हैं फिर हमने रीसेल स्टार्ट किया कस्टमर बोला रीसेल भी करना है मुझे घर खरीदना है फिर हमने प्राइमरी सेल भी स्टार्ट किया फिर कस्टमर ने बोला अच्छा घर तो मिल गया लेकिन मेरा रेंट एग्रीमेंट कौन कराएगा मेरा सेल एग्रीमेंट कौन कराएगा मुझे लोन नहीं मिल रहा है लोन दिलाइए तो धीरे धीरे ना वी मेड इट इनटू अ वन स्टॉप शॉप सो नाउ मेरा वन ऐप फॉर ऑल योर प्रॉपर्टी नीड्स आपको जो भी करना है अपनी पूरी रियल एस्टेट जर्नी पे आप नो ब्रोकर पे कर सकते हैं आई थिंक दैट मेड इट सो मच ईजी फॉर द कस्टमर रादर देन गोइंग टू 10 डिफरेंट प्लेसेस एवरीथिंग दे कैन डू एट वन प्लेस अखिल व्हेन यू गाइस स्टार्टेड जैसे आपने कहा कि एकदम स्टार्टिंग में तो ऐप भी नहीं था इट वाज जस्ट द वेबसाइट एंड इन द लास्ट 12 years because it's your side of the expertise I want to ask you how much has the product evolved यार जब किया था तब तो आता भी नहीं था ठीक है तो इट वाज so honest इट वाज एक डेटाबेस उस डेटाबेस के ऊपर आपने हाइबरनेट से कोड देख के यूआई बना दी तो बिकॉज वी डिडंट नो कि वी विल स्केल so since then we have re-architected platform multiple times microservices have come into the place how exactly there are events which are talking to each other there are communication which is happening अब जब हमने स्टार्ट किया था तो ना सोचा था कि यार कस्टमर से भी बात हो रही होगी आज कस्टमर से हम चैट पे बात करते हैं कॉल पे बात करते हैं ईमेल्स आ रही हैं सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे लोग पोस्ट कर रहे हैं all those information is flowing coming into the system we are generating insights on top of it real time पे on consumer patterns where exactly demand is coming up how much time will it take for this property to get sold or rented out all those insight how exactly prices are changing what and when somebody will need the service like somebody has bought a house तो अब उन्हें इंटीरियर कराना होगा क्लीनिंग कराना होगा पेंटिंग कराना होगा all those things have come in तो बहुत छोटा सा चीज था इट्स एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस और उसी बीच में हम लोगों ने वी स्टार्टेड दिस सोसाइटी मैनेजमेंट ऐप नो ब्रोकर रूट विच इज
totally different, which is like B2B kind of a thing, where we go and sell it to the RWS, where for entry, exits, your finances, आपको जो bill pay करने हैं, it is completely IoT enabled. आपके स्विमिंग पूल में pH कितना है, आपके यहाँ पे साउंड डेसिबल कितना चल रहा है, आपके यहाँ पे फेंस लगी हुई है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बराबर है कि नहीं, all those things have integrated and it has become the living smart. You know, middle of this year, you guys announced Converzen, your very, very exciting collaboration with Google Cloud. So tell us about that. Adding to what I was saying, so basically what we realized, at NoBroker, as Saurabh said, customer is king. हमें customer से बात करनी है, हमें C2C platform, correct? कस्टमर आपस में क्या बात कर रहे हैं, हमारे बंदे कस्टमर से क्या बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोग फील्ड पे नहीं है, मोस्ट ऑफ द वर्क हैपेंस सिटिंग एट द ऑफिस. लाइक वी हैव अ बिग कॉल सेंटर जहाँ पे हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, who are helping customers. They are our brand. They represent NoBroker. Can I get a, I'm so sorry to interrupt, can I get a small number कि कितने customer care executives पूरे देश में काम कर रहे हैं? पूरे देश में से बैंगलोर में है, and we have around 3,500 people. 3,500. Which are helping people to get house, buy house, rent, lease, painting, cleaning, anything. As Saurabh said, one stop shop. अब ये जो 3,000 लोग हैं, इनको ट्रेन करना और एक्सपेक्ट करना कि ये लोग एक ही तरीके की सर्विस दे रहे होंगे, एंड इवेंचुअली आदमी इज ह्यूमन, करेक्ट? इट्स नॉट पॉसिबल. तो हमेशा वी थॉट वील हैव टू बिल्ड अ सिस्टम वेयर वी आर एबल टू कीप अ टैप एंड अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर इज सेइंग, वेदर वी आर एबल टू परफॉर्म टू द SOP what we have created for the company. And that's how we started building कि यार ये जो कॉल्स हैं इनको हम ट्रांसक्राइब कर लेते हैं. तो हमने we started using Google, Microsoft, and they don't work in Indian languages. बाकी कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि आपके एजेंट से वो कॉल कर रहे हैं, अगर वो 500 कॉल कर रहे हैं उनमें से आप 1 या 2 कॉल सुन लेंगे और उससे आप डिपस्टिक करके चेक कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है. वी सेड कि ये तो बहुत ही खराब तरीका है, बिकॉज इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है. Correct. कैन वी लिसन टू ऑल दोस 500 कॉल्स? Yes. डूइंग इट मैनुअली इज इम्पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई द सिस्टम केम इनटू प्लेस. So कि ट्रांसक्राइब करते हैं. हमारे पे कॉन्वर्सेशन क्या है, आप कॉन्वर्सेशन करोगे इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश बंगाली, इंग्लिश तमिल, कन्नड़ा हिंदी इंग्लिश, मल्टीलिंगुअल ट्रांजेक्शन. तो हमने इस पे काम करना चालू किया. देन वी क्रिएटेड आवर सिस्टम कॉल्ड माया विद विच वी आर एबल टू ट्रांसक्राइब दीज, एंड देन वी स्टार्टेड गिविंग इट बैक टू आवर टीम एंड दे वर एबल टू एनालाइज. अरे यार इससे मजा आ रहा है. नाउ एज सौरभ सेड, अब एक की जगह मैं 500 कॉल पढ़ सकता हूँ सुनने की जगह. दैट इज व्हेन वी रियलाइज दैट देयर इज सो मच ऑफ zen in these conversation, and it is not restricted only to the calls. So we brought in all conversations possible, which can be conversation on WhatsApp, chats, emails, Instagram पे आप हमारे लिए क्या लिख रहे हो, आपने कहीं email करके complain करी है. We created this system Converzen, which derives the insight of the conversation which is happening between agent customer and customer customer. क्योंकि ओनर और टेनेंट या बायर और सेलर जब NoBroker पे नंबर लेते हैं तो दे गेट अ मास नंबर. आप जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास है, व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर सेइंग, बिकॉज कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई फॉल्स प्रॉमिस ना हो जाए. तो रियल टाइम पे वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ट्रांसक्राइबिंग, आवर सिस्टम इज रनिंग, और बोल रहा है कि हाँ शायद सौरभ को पेंटिंग की सर्विस भी चाहिए. तो देन वी पिच कि यार सौरभ आपको पेंटिंग की सर्विस चाहिए. या फिर ओनर को कॉल किया टेनेंट ने और ओनर ने बोला कि यार मेरी प्रॉपर्टी तो आज सुबह ही रेंट आउट हो गई एंड ही हैज नॉट मार्क्ड इट ऑन NoBroker. इमीडिएटली वो सिग्नल आता है और प्रॉपर्टी NoBroker से गायब हो जाती है. Wow. ताकि अगला टेनेंट जो है उसको जो हमने प्रॉमिस किया है कि आपको सिर्फ फ्रेश इन्वेंट्री दिखेगी और आपको जो ओनर है उससे बात कराएंगे और घर रेंटेड आउट नहीं होगा, वो प्रॉमिस हम फुलफिल कर पाए. सो दैट इज हाउ वी लेवरेज द टेक्नोलॉजी. तो ये जब बना तो हमने रियलाइज किया कि दिस इज नॉट ओनली फॉर NoBroker. सो वी went ahead and we said ये तो सबको प्रॉब्लम है जहाँ पे कॉल सेंटर है. सो आवर फर्स्ट कस्टमर वाज लेंडिंग कार्ड एंड वी रिसेंटली शॉट अ कस्टमर टेस्टिमोनियल. सो हमने बोला आपके जो यूज केसेस उसमें डालते हैं, एंड दे हैव सीन एफिशिएंसीज जंप बाय 20-25% ऑन देयर कॉल सेंटर, ऑन देयर कस्टमर सपोर्ट. क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग वी यूज टेक्नोलॉजी टू ऑल्सो ड्राइव इनसाइट्स फ्रॉम दैट. यू नो कि कस्टमर पॉजिटिव है कि कस्टमर नेगेटिव है, आपने SOP पूरा फॉलो करा के नहीं किया. You can also train your people based on the insights which you get from that. So I think it's a very powerful system that way. और अब जो नया चीज उसमें ऐड हुआ है which is like human voice bot, which is virtual agent. So now we have a bot which can converse with you, and it can be my voice also. We use CNV, customer neural voice, with which we are training, and it will talk to you as if you are conversing with someone, which we are opening up for customers now. आप आइए, अपना बॉट डिफाइन करिए, यू जस्ट रन इट आउट. तो जो बेसिक
है जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे लैंडिंग कार्ड का यूज केस है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। नो ब्रोकर में हम लोग जब कॉल करते हैं कभी कभी कि आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट हो गई है कि नहीं होगी, ऑल दोस थिंग्स you can just talk as if you're talking to the human, and bot will do everything. You know, I want to ask both of you, कि which are the industries where Conversant can have the maximum impact? Off the top of my head, मुझे right now सुन के लग रहा है कि food delivery apps, क्योंकि वहां कभी कभी हफ्ते में 3-4 कंप्लेंट्स भी होते हैं, and we are talking to the customer care executive. All of that will then become on spot available data which can then be used. Yeah. तो कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है where Conversant can have the maximum impact? I think जहाँ भी call center है, BFSI sector, I think huge impact can be there. Wherever basically you're using any call center agents, it can be used in that. Not only call center agent, जहाँ भी customer facing है ना, your business is about serving customers, and you worry about customer happiness. Conversant will play a very important role, even if it is not a call center. And you have taken some names. We are working with few of those companies already. It can be as simple as कि यार आपके पास कॉल सेंटर है ही नहीं, सब कुछ चैट के ऊपर होता है, बट पीछे एक आदमी चैट कर रहा है, करेक्ट, उसके ऊपर भी ये एनालिसिस आता है। आप जैसे फूड डिलीवरी हो गया या फिर आपका पैकेज डिलीवरी हो गया, Amazon वाला बंदा आ गया, डिलीवरी बॉय ने कॉल किया कस्टमर को या कस्टमर ने कॉल किया डिलीवरी बॉय को, आप कहाँ पे, वो जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, व्हाट एग्जैक्टली दीज गाइज आर स्पीकिंग, व्हाट एग्जैक्टली डिलीवरी गाय इज टेलिंग, वेदर वो बोल रहा है कि नहीं साहब आप बाहर आके पैकेट ले लो, या फिर मैं गेट पे छोड़ के जा रहा हूँ, और फिर बाद में वो मार्क कर रहा है कि कस्टमर घर पे अवेलेबल नहीं था। All those information and all of this is data. All of this is data which is available to you, and you can configure rules कि अगर डिलीवर पार्टनर ऐसा करता है तो immediately ये होना चाहिए, downstream it can connect with your CRM and you can take the measures whatever. So it's a proactive system rather than being reactive by looking at 1-2% of the conversations of the customer. छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा, delivery apps do this like Amazon, like Flipkart, where they ask a question that is this address home address or office address, so can we go on a weekend or not? We have to click those manually. Say हमने click नहीं किया है, but during a call which is being captured by Conversant, कोई कहता है कि ये ऑफिस एड्रेस है तो आप वीकेंड पे मत जाना, automatically that will convert data. Those are a very very basic use cases. मतलब मैं Conversant में आप बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको फोन किया और बोला सर, बोले यार अभी मैं बिजी हूँ, 4:30 बजे मुझे कॉल कर लेना। सिस्टम में ऑटोमेटिकली 4:30 बजे का फॉलो अप लग जाएगा, और अगर आपके पास ऑटो डायलिंग सिस्टम है तो आपको ऑटोमेटिकली कॉल ट्रिगर हो जाएगा सुनेंगे। एंड व्हेन आई एम सेइंग 4:30, आई एम नॉट टेलिंग 4:30, आई एम टेलिंग 4:30। जब हमारे सिस्टम में बोलते हैं कि यार मुझे 2.25 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, तो इट डज एंटिटी आइडेंटिफिकेशन एंड मेक्स इट 1,75,000 rupees. How many Indian languages are currently available on the platform? All I Indian. mean, all languages. All Indian languages. Yes. And we are much better, much faster and much cheaper than any other solution which is available. Saurabh, Akhil, even during the conversation, this was something that you guys mentioned a lot, that is, it's just been 10 years. Yes, we are India's first PropTech unicorn, but it's just 10 years. There's a lot more lined up. There's a lot more planned. Tell us about some of those plans. So like we said earlier कि अभी हम 6 cities में ही हैं, and 6 cities में भी शायद हमारा market share in terms of number of properties that we are closing is probably 10%, 12%. तो I think इंडिया में ना 40-50 cities हैं बड़ी जहाँ real estate होता है, तो हमें उन सब cities में जाना है। हमें अपना मार्केट शेयर जहाँ हम क्लोजर कर रहे हैं अगर 10-12% कर रहे हैं, वी थिंक वी कैन एम फॉर 60-70%, बिकॉज योर अदर ऑप्शन इज टू पे ब्रोकरेज, पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर अस टू गो डीपर इन द सिटीज, एक्सपैंड सिटीज, एंड लाइक यू सेड इट्स अ ह्यूज मार्केट एंड वी हैव जस्ट scratched the surface. 8,000 crores versus 2 lakh crores, right? That's where it is. Akhil? तो अगर आप 10 साल देखो तो 10 साल पहले हमने नो ब्रोकर में रेंटल चालू किया था, रीसेल हमने उसके 2 साल बाद चालू किया, प्राइमरी सेल उसके 1 साल बाद चालू किया, होम सर्विसेज जो हमारा क्लीनिंग पेंटिंग वाला बिजनेस है उसका 4था सीजन है अभी, क्लीनिंग पेंटिंग हो गया, इंटीरियर जो है हमारा अभी वो 2-3 साल पुराना है। तो आप देखोगे मल्टीपल कंपनीज हैं नो ब्रोकर के अंदर, बिकॉज वी आर अ वन स्टॉप शॉप। तो कुछ धंधे पुराने हैं, कुछ धंधे नए चालू हुए, हर धंधे को करीब 8-10 साल तो लगेगा to do something. So that's why I say, yeah, it's a journey which has just started. And when we started, we didn't realize that we'll do so much.
we thought we can do, but so many opportunities opened up. So जैसे अभी कर रहे हैं अगले 5 साल 10 साल में I am sure there are many more opportunities which will open up and we'll be doing many more things. So that's why it's a journey which will, according to me, it should never end. A few weeks back, I was shooting a podcast with Make My Trip founder Deep Kalra. During the talk, he said that the current Indian youngster, 9 out of 10 of them, they don't really want to buy a house. They are more interested in renting. I want to ask you guys, in the last 10 years, what is some of the data that you guys have seen on your platform? Is it a valid statement? No, I think it has changed drastically. If you look at what used to happen pre-COVID, that was the opinion कि मेरे को घर क्यों खरीदना है, मैं तो मोबाइल हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, I don't want to bind myself down to one house and all that thing. So a lot of people used to think like that. तो अगर आप देखेंगे कि 2013 से लेकर 2020 के बीच में रियल एस्टेट अच्छा भी नहीं करा इंडिया में, इतना प्राइसेस भी ग्रो नहीं करे. Of course, there were a lot of headwinds also, कि रेरा आया, GST and all those things. But prices were kind of stagnant. बट अगर आप इसके बाद देख रहे हैं कोविड के बाद, तो पिछले 2-3 साल में हर साल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और काफ़ी हेल्दी तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं. इसका रीज़न ये है कि जो ये मिलेनियल्स जो है, जो कि पिछले डिकेड में पूरा रियल एस्टेट से बाहर थे, नाउ दे आर कमिंग बैक विद अ वेंजेंस. So we see that almost 50% people who are now buying a house are actually these millennials who were earlier saying कि नहीं, मुझे तो घर लेना ही नहीं है, मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, and they are now back and they're buying houses every day. We recently did a survey also and we published the results. Average, and this from the data on No Broker, average age of buying has come down. It used to be 40 plus 45 earlier, which has come down to 32, 33 now. और जैसे सौरभ ने कहा, देखिए वो सब कहने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऊबर में चलूंगा, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं किराए के घर में रहूंगा. बट जब कोविड आया और जब पीछे पड़ा किसी के, यार आपको ओनर बोल रहा है या तो आपके पास घर नहीं है या फिर आपको सब कुछ छोड़ के एकदम से जाना पड़ रहा है, और फिर जब आप वापस आ रहे हो तो घर के रेंट 2 गुना हो गए या फिर 60% बढ़ गए, तो पीपल रियलाइज ओवर. देखिए आप अगर आज के आज वैल्यू बोलेंगे ना कि यार मुझे तो 1.5% 2% में घर मिल जाता है, मैं 8% पे लोन लेके EMI क्यों पे करूँ. आप इसी चीज को 8 साल बाद देखो. जब मैंने मेरा पहला घर लिया था, I was also paying a huge EMI. At that point of time, I was paying like 45,000 rupees. And it would have, and rents were 14,000, 15,000 rupees. जो घर मैंने लिया था, उस घर का आज रेंट मुझे आता है 50,000 रुपए से ऊपर है. जो घर मैंने लिया था, उस घर की वैल्यू आज हो गई है ऑलमोस्ट 3 गुना. करेक्ट. तो आप you should not see it on year basis kind of a thing. आपने एक एसेट लिया है, आप उसको देखो 8 साल 10 साल में क्या होगा, plus the mental peace which you have when you are consuming it. So that way it will always. Real estate is also cyclical. So real estate हमेशा साइकिल्स में मूव करता है. कि अगर आप देखेंगे कि 2004 से 2012 अच्छा किया रियल एस्टेट ने, 2012 से 2020 अच्छा नहीं करा, अब वापस अच्छा कर रहा है. तो हमें लगता है कि 6-7 साल 8 साल की साइकिल होगी, उसके बाद शायद वापस स्टैग्नेंसी आएगी. बिकॉज when the cycle is up, what happens is that everybody becomes too optimistic and there is a huge supply which comes in and which actually leads to stagnation after that. Which is true in stock market also. आज जो आप मार्केट में देखोगे, सब बोलते महंगा है. आपका SME इंडेक्स भी भाग गया, आपका मिड कैप भी भाग गया, स्मॉल कैप भी भाग गया, और जब करेक्शन आएगा तो मोटा करेक्शन आएगा एंड पीपल विल लूज मनी. तो वो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, डिफरेंट एसेट क्लास है. You should not put all your eggs in one basket. Real estate is an asset class where everybody should invest, and at some point of time they should definitely buy a house, at least one house and where also, they have to live. Also I think real estate जो है ना काफी इवेंट ड्रिवन परचेज है. तो अगर आप एकदम बैचलर्स की बात करेंगे तो बैचलर्स शायद घर खरीदने की नहीं सोचते, बट वंस दे गेट मैरिड, दैट्स व्हेन द फर्स्ट इवेंट हैपेंस. जैसे कि ठीक है आप घर खरीद लेते हैं, काफी लोग जो है जब बच्चा होने वाला होता है उससे पहले घर खरीदते. सो आई थिंक इट्स वेरी इवेंट ड्रिवन काइंड ऑफ थिंग. परचेज इज नॉट कि बैचलर भी निकला कॉलेज से, वो सीधे सोचा कि घर खरीद लेता हूँ, ऐसा नहीं होता. और एक और रीजन जो आप हो रहा है घर खरीदने हैं, क्योंकि आप पिछले 10 साल में देखोगे ना इंडिया में जो ग्रोथ आई है, जिस तरीके से जॉब्स बढ़े हैं, तो जो लोग आज से 10 साल पहले 22 साल के थे, 23 साल 21 साल के थे, अब वो 30 32 33 के हो गए. दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर हैविंग किड्स, and now they realize the value of house which they should own. और वो सालों साल बढ़ता जा रहा है because of the sheer population जो हमारी young population थी, and the way we are getting into that population bracket of 30-35 years. So that's why
real estate will do better according to me for many coming years. So the data is that post COVID, buying of houses started increasing actually. Yeah. Do we have this data कि कौन से शहरों में सबसे ज्यादा? Yeah. तो अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है. Bangalore is one big city where a lot of growth has happened. Hyderabad is another one. Pune is another city which sees a lot of growth. Delhi NCR में भी ग्रोथ हुआ है, बट दिल्ली NCR में 2012-13 में एकदम ही बूम था. तो अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कोविड से पहले जो हो रहा था उससे तो हम काफी ऊपर है ऑलरेडी. So which cities in India currently वहां घर खरीदना is the most profitable? हाँ. इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक बैंगलोर इज अ वेरी गुड सिटी. The rates are still very affordable as compared to the income levels which we see. I think Pune is the other one. Again, a very good city where the prices are still not very high. What is the difference when buying a resale property and a new property? Resale property is like किसी के पास घर है वो बेच रहे हैं. Hmm. You buy it, either you move in immediately or you renovate and you move in. न्यू फ्रेश प्रॉपर्टीज के अंदर ही होता है, बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इधर इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, आप आज बाय करोगे 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको. Correct. ये तो description हो गया. Yeah. What I was trying to ask was from the financial aspect of it. How different is it? इन्वेस्टर के लिए ना हमेशा हाँ. अगर आप इन्वेस्टर देखेंगे, दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं. एक इन्वेस्टर है जो बोल रहा है कि मेरे को ना रेंटल यील्ड चाहिए, कि मैंने डाला पैसा और इतना मेरे को हर महीने मिलना चाहिए. उसके लिए तो रीसेल बेस्ट है कि आपने घर खरीदा, रेडी है, थोड़ा सा आपने ठीक कराया और आपने किराए पे दे दिया, एंड यू आर गेटिंग 30-40-50,000 रुपीज एवरी मंथ एंड विच यू आर यूजिंग. बट अ पर्सन वाज सेइंग कि मेरे को ना एप्रिसिएशन ज़्यादा चाहिए रेंटल के अलावा. उसके लिए बेटर है कि आप न्यू प्रॉपर्टी में जाइए, बिकॉज आप कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट करेंगे. तो अगर प्रॉपर्टी 4 साल बाद मिलने वाली है, अभी आपको 10% ही देना है और फिर धीरे धीरे उसमें आपको और पेमेंट करना है. और इस बीच में जब वो प्रॉपर्टी फाइनली रेडी हो जाती है तो आपको एक किकर मिलता है प्राइस इंक्रीज में. तो आपने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन या लॉन्च पे थी, जब उसका पोजेशन होगा उसमें एप्रिसिएशन आ गया होगा और उस टाइम पे आप उसे बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं. और अगर आपने लेवरेज किया हुआ है, क्या लोन लेके रखा हुआ है, तो आपका खुद का कैपिटल कम लगा है, सो यू विल हैव मच बेटर रिटर्न्स ऑन दैट पर्टिकुलर सेल. I want to ask you guys, these terminologies that millennials and Gen Z, so is there a stark differentiation that how does a millennial spend and how does a Gen Z spend when they are trying to spend on real estate? Are these conversations that you all have in meetings? ये डिस्कस किया जाता है? What is it like? ये सौरभ आराम से बता सकते हैं क्योंकि इनके बच्चे जेंजी हैं. आई थिंक अभी काफ़ी सिमिलर वो हो गया, क्योंकि हम जो देखते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो वो इसी चीज़ पे बात करता है कि मेरे को रेंटल पे पैसा कमाना है या मेरे को कैपिटल एप्रिसिएट करनी है. एंड आई थिंक मोस्ट इन्वेस्टर्स एक्चुअली लुक एट अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो दे सेइंग कि मुझे अभी खरीदना है, जो कि मैं कंस्ट्रक्शन जब पूरा हो जाएगा तब बेचूंगा और उसका जो गेन मिलेगा वो मैं ले सकता हूँ. और मैं लोन लूंगा तो मेरे को अपना इन्वेस्टमेंट 20% ही करना है, 30% ही करना है, और बाकी उस पर मेरे को रिटर्न मिलेगा. तो अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, उसमें आपने जो भी डाला है उसके ऊपर आपको अप्रिसिएशन मिल गया उस हिसाब से. एंड यूज में आई थिंक सबका बहुत ही अलग अलग व्यू पॉइंट है. किसी का कुछ होता है कि मेरे को, मोस्ट लोगों का होता है कि मेरे को अपने वर्किंग प्लेस के पास रहना है, तो एकदम वैसा व्यू पॉइंट है. हम देखते हैं कि यंगर ऑडियंस है, उनका थोड़ा प्रेफरेंस होता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा हैपनिंग जगह के पास रहना है. तो कुछ लोग बोलते हैं कि कोरमंगला रहना है, इंदिरा नगर रहना है, बैंड्रा रहना है, बट ऑफ कोर्स दोस आर आल्सो एक्सपेंसिव प्लेसेस टू लिव. क्या अफोर्ड नहीं कर सकते. So lot of people start with saying कि I want to live in Bandra, I want to buy a property there, but when they realize कि नहीं ये मैं afford ही नहीं कर सकता हूँ, then they move to say Andheri or they move to Malad and those kind of places. So that we see happening a lot. And we also see that the time taken to close the property has come down significantly. जो शायद कोविड के पहले बहुत लंबे टाइम तक लोग सोचते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी रहती भी थी बहुत लंबे टाइम तक. अभी लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं. दे डिसाइड कि अच्छा ये प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, बिफोर समबडी एल्स कम्स एंड टेक्स अवे दिस प्रॉपर्टी, लेट मी डिसाइड. So we also seen that happening now. और decisions faster हुए हैं with Gen Z and millennials. Like I am a millennial, Saurabh is not, and there is a Gen Z. अरे मिलेनियल हुए. Of course. तो I've seen cases where people came to visit a property once, and that time it's decided, okay, I'll go for it, and they gave a check in first visit. Wow. खरीदने के लिए. Almost 20-25% people are doing that now. तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है कि घर को उतना अच्छे से रखना भी चाहिए, ताकि हु नोस फर्स्ट मीटिंग में कोई खरीद ले सके. इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
Was this 2023 when another Series E funding was done? No, we did in 21. Oh, that was 21. Sorry, my bad. There is a follow-on from Google. Google, happened. we did Yes. It's a last year, small January. amount. Which happened last year. Yeah. I want to ask the two of you. That is because in the first 7 years before 2020, there was a lot of investment that came towards no brokers from international companies as well. Yeah. I want to ask you guys कि चलिए हम OpenAI के 6.6 billion की बात नहीं करेंगे, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई. But when we look at the United States, when we look at the Bay Area, a lot of very heavy investment goes into AI companies and technological startups. But when we look at Indian AI companies and startups, matlab it is in no way similar. So what is the reason behind that? एक होता है टेक्नोलॉजी बनाना, एक होता है एप्लीकेशन बनाना. करेक्ट. इंडिया में टिपिकली वी लेवरेज टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. वी हैव नॉट कम टू द स्टेज वेयर वी आर क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजीज. And you can go back and see, like, India as a country, अभी हम developing country है, we have a lot of problems to be solved, so people are focusing on that particular. And that is my personal belief. जब आप थोड़ा डेवलप्ड होते हो, आपके पास टाइम होता है, समय होता है, तब आप सोचते हो क्या कर सकते हो, एंड देन यू क्रिएट टेक्नोलॉजीज. लाइक इफ यू टॉक अबाउट टेस्ला, यू टॉक अबाउट OpenAI, यू टॉक अबाउट एनीथिंग, गूगल एंड ऑल दोस थिंग्स, वो वहाँ से बनता है. तो इंडिया भी उस जर्नी में आप अगर 2015 में जाओगे, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तब क्या होता था कि अगर कुछ वेस्ट में हो रहा है तो ईस्ट में होगा तो फंड कर देंगे. अब इंडिया में एटलीस्ट वो चेंज आ गया है कि हम मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, उन पे पैसा लगने लगा है. अगले 5 साल 10 साल में ये भी होगा कि इंडिया से कंपनीज निकलेंगी जहाँ पे टेक्नोलॉजीज बनी होंगी, विच विल बी heavily funded, and by then our ecosystem would have proven itself by giving returns back to the investors, जो अब होने लगा है. मतलब पहले बीच में तो ये भी थी ना यार, इंडिया के स्टार्टअप ने पैसा भी रिटर्न नहीं किया है, बिकॉज वी टेक मनी फ्रॉम PEs and VCs and we need to make money for them, then only they will be able to put big bets. तो जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तब उसके बाद होगा. तो दैट जर्नी इज हैपनिंग एंड आई थिंक इट विल इम्प्रूव इन अनदर 5-10 years. इंडिया में मुझे लगता है कि एक और चीज़ है कि I think the ecosystem is still figuring that what will work in AI and where should I take a bet, because so many things are happening. So people are not sure what is going to be successful and where should I do that. And I think dedicated AI funds bhi nahi hai. Like unlike the US, where of course corporate VCs also invest a lot of money, but there are dedicated funds who are saying I only want to look at AI. So that's also a big difference, because India funds are typically much wider in terms of where they invest. They invest in consumer, they invest in technology, they invest in SaaS businesses, so offline businesses maybe invest karte hain. So I think it's a very different kind of ecosystem here than what you have in the US. When we look at the present scenario, I want to ask you guys, what is no brokers ka direct competition? There's one answer, and the other part of the question that I want to ask you guys is, how does no brokers differ from them, stand apart from them? एक तो नाम में ही है, the fact that there are no brokers. But what are the competition and how does no broker stand apart from them? नहीं, हमारा तो एक ही कंपटीशन है, वो है ब्रोकर. तो अगर आप करोगे तो हमारे से करोगे या फिर ब्रोकर से करोगे. अब वो ब्रोकर आपको कैसे भी मिल सकता है. आप गूगल सर्च करके भी ब्रोकर ढूंढ सकते हो. आप कोई रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म, 99 acres, मैजिक ब्रेक्स, कोई यूज करके भी आपको ब्रोकर मिल सकता है. बट आंसर दो ही है, या तो नो ब्रोकर या फिर ब्रोकर. सो ओनली वन कॉम्पिटिशन. और कोई है ही नहीं कंपटीशन, क्योंकि हमसे पहले किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया है. सबने आपको ब्रोकर से कनेक्ट किया है. तो आप जब उन प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो इवेंचुअली ब्रोकर से, तो एंड यूजर तो ब्रोकर के पास जा रहा है, तो या तो नो ब्रोकर या ब्रोकर. और उसके साथ में नाउ बिकॉज वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स विच इज लाइक वी आर वन स्टॉप शॉप. तो हाउ डू वी get into these services, how do we expand it, and how do we get into there, that will play an important. Saurabh, we were talking about investments. You are an angel investor in more than 30 startups. So when you look at a startup or a company, chahe be it a first time company or a company that has been there for a while, when you want to do an investment, what are some of the things, the key things that you look at? I think there are 2-3 very important things which I look at. One, definitely कि कोई कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है. इज इट इज अ पेन पॉइंट विच दे आर सॉल्विंग. I think that's very, very critical, because look, I don't understand when you build companies which are without pain points. And I know that a lot of them have become successful also, but at least I am not able to understand when people do that. Second, I think it's very important to look at the founder. Because look, when you invest in a company, what will happen is that, just look at No Broker itself. हमने start किया था rental करेंगे.
फिर हमने कहा था कि रीसेल करेंगे, बट अब देखिए हम कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं नाउ, यू नो, the lot of our revenue comes from all the other services also, and I've seen so many companies like these who started with something but then they made some change or added businesses and did a lot of things, and that all depends on how much is the perseverance the founder has, how much agile the founder is. So I think you're investing in the founder, not in the company. I think that's the thing which you should always look at. तो ये दो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें आई थिंक वी आर सेकेंडरी, बट ये दोनों चीज़ें अगर फिट हो रही है, then that company will be able to succeed. If one person has to ask you one advice, one or two most important advice to give to young Indian entrepreneurs, jo they want to do something in the tech space, they want to do something in the AI space, they want to build in India, take it to the world, so what will some of those advice pieces be? आई थिंक 2-3 चीजें हैं जो हमेशा बोलता हूँ. एक तो जो सौरभ ने बोला, पेन पॉइंट, प्रॉब्लम रियल होनी चाहिए. हवाई प्रॉब्लम बना के, अपने दिमाग में प्रॉब्लम बना के उसका सोल्यूशन लेके, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम समझानी पड़ रही है ना सामने वाले को, ये प्रॉब्लम है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट यू आर ऑन द रॉन्ग. Can you give like one example of this and one example of that? मतलब अब जैसे हमने जब नो ब्रोकर किया तो हमने बोला कि यार लोग पे कर रहे हैं, बिल्कुल, ये हमें समझाना ही नहीं पड़ा. प्रॉब्लम ये थी, लोग ये बोल रहे थे चलेगा कि नहीं चलेगा, और क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यूएस में नहीं चला. दैट इज डिफरेंट थिंग, बट नोबडी आर्ग्यूड ऑन द पॉइंट कि यार दिस इज अ प्रॉब्लम. करेक्ट. अब कोई वो बंदा बोलता है कि यार मैं एक ऐसी चीज बना दूंगा कि जैसे एक दो कंपनी जब हम एंजल करते हैं तो एक दो कंपनीज आती हैं, तो एक बंदा था मेरे पास, वो बोलता है कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि जो हमारे पास जो लॉग्स आ रहे हैं उनके ऊपर मैं रियल टाइम में डेटा प्लग करूंगा एंड आई विल बी एबल टू डिबग ऑन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. अब देखिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का एक्सेस आपको कोई नहीं देगा, नोबडी विल गिव यू. दैट मे बी अ गुड पेन पॉइंट, बट विल दैट बिकम अ रियल कंपनी? आई डोंट थिंक इट विल. अब इसी के साथ में एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई वाज इन कोटा ड्यूरिंग कोविड, आई वाज स्टेइंग देयर इज एन एंटरप्रेन्योर. उसने मुझे किसी ने कनेक्ट कराया, राजेश सानी ने कनेक्ट कराया था. उन्होंने बोला कि इससे मिलो. तो ही इज डूइंग हाइड्रोपोनिक्स, तो मतलब विदाउट हाइड्रोपोनिक्स, लाइक विद वाटर एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर दे ग्रो टोमेटोज एंड ऑल दोस थिंग्स. तो मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फार्म पे आ जाओ. मैं मैप लगा के उसके फार्म पे गया. बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था, चप्पल पहने हुए और मिट्टी में पाँव सने हुए. तो मैंने कहा यार उनसे मिलना है, कंपनी के फाउंडर से, मुझे अमित से और इससे मिलना है, अभय से. तो बोलता मैं ही हूँ अभी. वो मिट्टी में, खेत में खड़ा हुआ है, मिट्टी में सने हुए पाँव हैं उसके आप कपड़े देखोगे ना तो आपको मतलब कपड़े आप मानोगे नहीं कि यार फोन. और लेके गया, क्या पैशन से दिखा रहा है, देखो अखिल हमने ये किया, हमने ये IoT बनाया, इस तरीके से टमाटर उग रहे हैं. ही नोज एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है. दैट इज द फाउंडर हैज टू नो व्हाट इज हैपनिंग. डेलीगेशन is good, but at least in the initial phase of the company you should know what exactly is the problem, how exactly you want to solve it. पूरा डिटेल में पता होना चाहिए ताकि आपको सामने वाला आदमी कभी बेवकूफ ना बना सके. Those are the most important points about it. Saurabh? आई थिंक अखिल ने जो बोला ये प्रॉब्लम वाला, ये तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इसका कॉरोलरी मैं आपको बोल रहा हूँ कि फेसबुक भी है कि जब मार्क जकरबर्ग ने स्टार्ट किया वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. Correct. बट ही गॉट एन इनसाइट which he latched on and he built such a large company. लेकिन मेरे को वो समझ नहीं आता है. तो if some social company comes and speaks to me, I am not able to visualize कि कंपनी बड़ी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. तो ईजी मुझे जो समझ में आता है वो है कि प्रॉब्लम होनी चाहिए और हम उसे सॉल्व कर रहे हैं ऐसे. तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए, कि एक अपनी बहुत ही अच्छी टीम बनाना. Recruiting people who are either as good as you or better than you. I think that's extremely important. क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगे रहते हो, आप सोच नहीं पाते हो. सो इफ यू हैव गुड पीपल हु आर वर्किंग विद यू, आई थिंक यू हैव मोर हैंड्स हु कैन थिंक, हु कैन डू थिंग्स विद यू, एंड यू आर एबल टू गेट अ लॉट मोर टाइम टू फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट. तो ये अच्छी टीम होना ये बहुत ही क्रिटिकल है. एंड तीसरा मतलब मुझे लगता है कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम कि आप स्टार्ट करो. इंडिया इज एट दिस प्लेस राइट नाउ कि आप अगले 10-20 साल में बहुत सारे बिजनेसेस बनेंगे. दिस इज द टाइम टू टेक रिस्क, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क दैट्स अ बिगर रिस्क.
तो इस टाइम पे आपको स्टार्ट करना चाहिए. ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी करूँ कि नहीं करूँ, बाद में 5 साल बाद करूँ. नहीं, यही टाइम है एंड यू शुड स्टार्ट नाउ. How true is it, because you said the next 10-20 years, that the upcoming companies will either be tech companies or companies that in some way or the other they are working with tech? मतलब वो दूसरे साइड का स्पेक्ट्रम का कुछ होगा ही नहीं. Is that true? टेक्नोलॉजी के बिना तो आज भी है ना. आज कोई भी भी- कंपनी आप मुझे बताइए, अगर आप किसी भी चीज को सोच लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड, आप एक ग्रोसरी शॉप पे भी जा रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है. आप छोटे से मॉम एंड पॉप आउटलेट में जा रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले रहा है, डिलीवरी कर रहा है, बिल बना के दे रहा है. तो आई थिंक टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला. और ये आई थिंक अभी नहीं, सालों से हो रहा है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो फैक्ट्रीज लगी, तो फैक्ट्री भी टेक्नोलॉजी है ना, आपका वर्क ऑटोमेट कर रही है. देखिए, होना क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, दे शुड मेक लाइफ इजियर फॉर ह्यूमन. एज अ ह्यूमन आई शुड यूज माई माइंड टू डू समथिंग विच इज मीनिंगफुल, जिसमें दिमाग लगे. आई डू सम कॉग्निटिव थिंग्स rather than doing something which is repetitive in nature. जो सेम चीज, रोज गड्ढा खोदने की क्या जरूरत है यार, बुलडोजर लगाओ, गड्ढा खोद दो. When you were talking about the advice pieces, there was one, the founder जिनके बारे में आपने बात की, which instantly took me back to this incident just 2-3 months back. So I shoot all these podcasts with founders. This was, if I'm not wrong, the company was called D-Town Robotics. They work with, they make robots and they make drones. And they were saying that they're working with the Indian government, where now farmers are using drones for agriculture. तो एकदम एक इंटीरियर जगहों में, गांव में किसानों के बच्चे ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत छोटे उम्र से. So the change in the country has become like this. When we look at 10-15 years back, the way the world used to look at us, and when we see now, the world is completely looking at India in a very, very different point. Talent was always there. People used to pass out from here, great education system, go there, make those companies grow. Now that shift is happening, that growth is happening in India. How does that make you guys feel as two entrepreneurs who started long before startups were cool? नो ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है. मुझे याद है कि जब 2007-8 की मैं बात कर रहा हूँ, तब तो वीसी फंड्स ही एग्जिस्ट नहीं करते थे. देयर वर नो वीसी फंड्स व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एट दैट टाइम. कोई इकोसिस्टम नहीं था, किसी से बात नहीं कर सकते थे. सो नाउ इफ यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी, देयर आर 100 पीपल हु वी कैन गो एंड स्पीक टू. आई थिंक it's so different. And incidentally, somebody was telling me this, I think today itself in the morning, ki reverse brain drain is a big thing now. Already a lot of people who are coming back to India and building companies are people who have lived outside India. And they told me that when China was at its peak, 2017-18, that almost 80% of the companies which were being made were people coming outside of India and coming back to China. Right. That was what was happening. So he said that this reverse brain drain is going to increase only from now on, because India has become such a big opportunity. People are saying, "Ki boss, everything is happening here. The changes which are happening now, if you just think of it, that 20 साल पहले जब हम इंडिया के बाहर जाते थे, वो अलग दुनिया होती थी और इंडिया लगता था एकदम अलग है. Now it's not so different. Everything which you think of, you find in the US or in UAE or Japan. Everything is almost available here. सिर्फ ट्रैफिक खराब है, बाकी सब तो ठीक ही है. As a matter of fact, मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातचीत कर रहा था फ्रॉम यूरोप एंड फिनलैंड, एंड वो कह रहे थे कि जो यूपीआई सिस्टम हमारे देश का है, दैट वे इट्स नॉट यूज्ड इन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. Yes. It is not. It is not. तो ये है जो सौरभ बोल रहे हैं. मतलब, और आप पता है मुझे क्या लगता है, हम लोग फैसिनेट होते हैं आज जब हम बैठे, बट अगर आप टाइम ट्रेवल करो, पीछे चले जाओ, आज से 30 साल पहले, तब भी बहुत टेक्नोलॉजी बनी है. तब रेडियो आया था, टीवी आया था, जब मोबाइल फोन आए थे, रिलायंस से जब सब गाँव में फोन बांट दिए थे, और किसान जब फोन पे बात कर रहा था और अपने फर्टिलाइजर के ऑर्डर फोन पे देखे शहर से मंगवा रहा था, दैट इटसेल्फ वाज अ रेवोल्यूशन. So this will keep on happening, and we'll have to keep adapting to this. As Saurav was saying, if you don't use technology, that is a bigger problem. तो वो पुराने तरीके से बिजनेस करना नहीं चलेगा आपको. You will have to keep adapting, keep changing, and keep in pace with the changes which are happening with the technology. What is your take on shows like Shark Tank making entrepreneurship cool? Would you say ऐसा हुआ है, and is that influencing and encouraging more entrepreneurs in the country? एक्चुअली मैंने शार्क टैंक देखा नहीं है, तो बट मैंने सुना काफी लोगों से दैट दे गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट व्हाट्स हैपनिंग. मैंने फर्स्ट सीजन देखा था, and I think it is good.
एटलीस्ट टेल्स पीपल दैट यार ऐसा होता है, बट उसका फायदा भी डाउन साइड भी है. हर बंदा बोलता है मैं धंधा बना रहा हूँ, मैं इतने करोड़ का बना रहा हूँ, मुझे इतने करोड़ की वैल्यू चाहिए, बट डेफिनेटली इट इज एम्बाइबिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट इज एनकरेजिंग लॉट ऑफ पीपल in tier 3 tier 4 cities to start up, which would have not been possible. Maybe they would have not even know that some dunya like this exists in cities like Mumbai, Bangalore, Pune, Chennai, where you can do something like this. So that is definitely. आपको मालूम है कि आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू समवन एंड दे टोल्ड मी दैट आज से 10-15 साल पहले 2007-8 जब मैंने शुरू किया था एंटरप्रेन्योरशिप वाज नॉट कूल, राइट? जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो माय पेरेंट्स वर रियली एंग्री विद मी कि हाउ कैन यू लीव अ एक्चुअल जॉब, राइट? इट्स अ ड्रीम फॉर सो मेनी पीपल एंड यू आर सेइंग कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कि मुझे कि जॉब छोड़ के अपना कुछ बिजनेस करना है. दे सेड कि बॉस दिस इज रियली नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग. एंड अभी मेरे को किसी ने बताया कि ऑन ऑल दीज मैट्रिमोनियल साइट्स द मोस्ट सर्च्ड टर्म इज एंटरप्रेन्योर. सीरियसली? Yeah. That's मैं एग्जांपल देके बताता हूँ. सौरभ ने नहीं बताया. सौरभ की शादी कम से कम 6 साल लेट हुई है क्योंकि ये नोब्रुकर से जो पहले बिजनेस कर रहे थे वो एक स्पा बिजनेस था. तो अच्छा. तो सौरभ के जो वाइफ के फादर है उन्हें लग रहा था कि यार ये लड़का तो मसाज करता है. करेक्ट. इससे कैसे शादी करवा दो बेटी की? बाद में भी खैर बोला ब्रोकर है बट करवानी पड़ी. बट दिस इज अ फैक्ट. दिस इज अ फैक्ट. The time when we got married, entrepreneurship, business, that was a taboo. Was looked down upon. Yeah. And now if you say, boss, I work, मतलब say क्या, I see it in my family, my extended family. जो बच्चे IIT से निकले हैं, मेरे भतीजे हो गए, छोटे कजिन्स हो गए, उनके वही प्रॉब्लम बोलते हैं, यार बेटा कुछ करो, स्टार्टअप करना चाहिए. So I think we have changed थोड़ा सा Shark Tank and I think role models, because now you hear so many entrepreneurs talk, whether it's on TV, whether in podcasts like this, people are exposed to this idea कि नहीं ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है करने में, we can try this, we can succeed in this and we can do actually very well by doing this. And ऐसा लोगों को मालूम चला है. And validation हुआ है with the wealth which has been created. That is also a fact. Eventually wealth बना है ना लोगों की. बिल्कुल. Flipkart ने पैसा बनाया है, हम नो ब्रोकर ने बहुत सारी कंपनीज ने सेकेंडरीज कराया है, and people have made money. तो लोगों को पता लगा है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट आप कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं. इट विल टेक टाइम बट देन रिवॉर्ड्स विल बी मल्टीप्लायर एंड दैट्स व्हाई पीपल वांट टू डू इट एंड दे शुड डू इट. आपके उस कोट से मुझे एक चीज की याद आ गई, व्हेन यू सेड कि अरे अपना कुछ स्टार्टअप वार्टअप करो. आई थिंक दिस वाज सम 2-3 months बैक वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग अ स्पीच हैड सेड कि बिफोर औरतों को इस तरह के सवाल पूछे जाते थे कि अच्छा ठीक है काम हो गया, अभी शादी कब करोगे एंड ऑल दैट. आजकल पूछे जाते हैं कि आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब मिल सकती है क्या. द बूम that we have seen in the last 15 years, in the last 10 years, the technological boom, the digital boom, how much of a role do you think the government has played? I think government plays a very important role because government makes sure कि वो destination attractive है कि नहीं capital लाने के लिए. वो बहुत ही important part है, because अगर stable नहीं है होगा, economy ठीक नहीं कर रही होगी तो external capital नहीं आएगी. We have seen what happened in China. China was at the boom of its technology as such, but all the capital just vanished because of uncertainties which were there. So I think government का काफी बड़ा role है कि stability provide करना, making sure that transparency is there and people should feel confident about the future of the country. Akhil, you're a tech guy. Tech boom के पीछे कितना बड़ा हाथ रहा है? is startup India हो गया and the ease of doing business. In fact जो India stack बना है जहाँ पे आपका UPI आ गया, आपका आधार वगैरह हो गया, उसको यूज करके जो कंपनीज बन सकी है. So there has been a big vision. And I think Nandan Nilekani has played a great role in that particular thing. आप आज देखो, आपको लोन मिल जाता है 3 मिनट के अंदर, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है, आपका पैन आधार से लिंक्ड है, आपके पास UPI है, आपके पास अकाउंट एग्रीगेटर है जिससे आपके एसेट्स की डिटेल्स आ रही हैं, आपके स्टॉक्स की डिटेल आ रही हैं. Somebody can do a risk analysis on the fly and they can say, okay, I can give you the money. And transferring the money in a jiffy is possible because of UPI. So government has definitely played a very, very big role. And I see that they are continuing to encourage startups the way the ministers, the Prime Minister talks about building startups. That's very, very encouraging. We are almost towards the end of the podcast, Akhil, Saurabh. Last 2 questions that I want to ask you guys. Narayan Murthy ने
कुछ हफ्तों पहले एक स्टेटमेंट किया था विच बिकेम इनॉर्मसली पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट, that he wanted Indian youngsters to work 70 hours a week. And there are a lot of people who are in favor of that statement, a lot of people who are against that statement. आप लोग की जर्नी से मुझे थोड़ा लगता है आप लोग शायद might be इस साइड में, because when the startup started, your family also started. So on which side of the spectrum are you guys? इसके कंट्रोवर्शियल आंसर है और एक डेमोक्रेटिक गुड दोनों वाला दे दीजिए. अगर आप मेरे से बात करोगे ना, आपको अपनी लाइफ के शुरू के 10 साल में घिसना चाहिए. यू शुड I agree. वर्क 70-80 hours. इसमें एक कंडीशन लगाऊंगा मैं. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू डू दैट. इफ यू वांट कि ठीक है जैसा चल रहा है तो डोंट डू इट. नोबडी इज आस्किंग यू टू डू इट. तो आप घिसा यार, इन्होंने भी किया, मैंने भी किया, अमित ने भी किया. मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग कोड फॉर नो ब्रोकर. सुबह 9:30 बजे मैं ऑफिस जाता था, शाम को 5:30 बजे आता था, उसके बाद रात को 12 बजे तक कोड करता था, फिर थर्सडे से संडे तक अपनी टेबल पे बैठ के कोड करता था. And I was a single guy. He was running around. He was running his another startup. At the same time, he was talking to investors. अमित अपनी जॉब में थे, वहाँ पे वो कर रहे थे. देखिए, बिना मेहनत के तकदीर भी एक चीज़ है, पर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा. और करनी है ना, मैंने क्या दिक्कत है जब आपका हाथ पैर आपकी बॉडी सब आपके साथ में रह रही है. वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा. 32-35 शादी कर लो, बच्चे कर लो, फिर कर लेना वर्क लाइफ बैलेंस. 10 साल काम कर लो. मतलब मैं तो हमारी कंपनी में जो फ्रेशर्स हो तो शुरू के 4-5 साल तो तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए क्या काम है कि यार मेरे को 8 घंटे की 9 घंटे की. अभी कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एक्चुअली मैन व्हिच आई फाउंड इट वेरी वेरी रिडिकुलस. समबडी मनी कंट्रोल पे था, किसी पे था, कोई एक बंदा था डिजाइनर, उसने एक कंपनी ज्वाइन करी. वहाँ पे उसके बॉस ने उसे कहा कि यार ये काम कर दो, ऐसा कर दो, और डोंट थिंक अबाउट इट. इज लाइक एसोसिएट यूएक्स और समथिंग लाइक एंट्री लेवल जॉब. तो उसने रेडिट पे लिखा कि आई किक्ड आउट, आई रिजाइंड इमीडिएटली. अपना रेडिट पे लेटर पोस्ट कर दिया एंड सेइंग कि यार आर यू पेइंग मी एक्स्ट्रा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, वेयर इज माय वर्क लाइफ बैलेंस. इट्स हिज लॉस. और फिर बाद में लिख रहा है इफ देयर आर एनी यूआई यूएक्स ओपनिंग्स आई विल बी हैप्पी टू अप्लाई. Of course. हु विल हायर? एटलीस्ट आई विल नॉट हायर. Will there be some company जो actually change अपने आप को अलग दिखाने के लिए कर भी लेगी हायर? कर ले. नहीं, मुश्किल लगता है मेरे को, हम्म. क्योंकि हर एक कंपनी में देखिए एटलीस्ट स्टार्टअप में हसल तो है ही. तो आई थिंक टिपिकली यू एंड अप वर्किंग लॉन्गर आवर्स एंड यू हैव टू, मतलब शुरू के टाइम में तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. धीरे धीरे हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए फिर भी, बट कम होता नहीं है. स्टार्टअप के जो लाइफ साइकिल है उसमें आप मेहनत करते ही हैं. तो आई डोंट थिंक एनी कंपनी वुड बी देयर विल से कि ठीक है हमें ऐसा आदमी चाहिए जो 9 to 5 जॉब कर ले. आई डोंट थिंक एनी कंपनी वुड. यार आप बच्चे भी देखो, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह 6:30 बजे स्कूल जाते हैं, शाम को 3:30 बजे वापस आते हैं. करेक्ट? 9 घंटे स्कूल में रहते हैं, उसके बाद अपना होमवर्क भी करते हैं, खेलते भी हैं. मतलब वो भी तो कार मेहनत कर ही रहे. एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट. व्हाट इज दिस कि यार 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे लेजर. मतलब मेरे हिसाब से तो इफ पूरी जिंदगी पड़ी ना वर्क लाइफ बैलेंस के लिए यार. वर्क इज योर. देखो जो सौरभ ने बोला था ना, अगर काम करने में मजा नहीं आता, इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल, और पीपल विल से ये बहुत गलत बोल रहा है कि व्हाई कैन यू ओनली बी सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड और वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, यू कैन बी स्मार्ट आल्सो. बट अगर आपका काम ही आपका मजा है, आपका प्रोफेशन है, यू विल नेवर थिंक यार आई एम वर्किंग फॉर 12 hours or 14 hours. Which then takes us back to 3 Idiots का रांचो का लाइन, if you're doing something जो पसंद है then तो काम नहीं लगता, खेल लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. So that choosing is also important. Yes, कि you do yes. something that you like. Yeah. Correct. ये अगर if this was an interview, I wouldn't have added my own take. लेकिन क्योंकि podcast है तो कर सकते हैं. I 100% agree with the fact कि करियर के स्टार्ट पे रगड़ना तो पड़ता ही है, घिसना तो पड़ता ही है. मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं 3 शूट करता था बॉम्बे में. रेडियो मिर्ची में अपने रिकॉर्डिंग खत्म करके लोअर परेल स्टेशन से मैं भागता था, लोअर परेल स्टूडियो से मैं भागता था लोअर परेल स्टेशन तक, रात 1 बजे की ट्रेन लेके फिर तारदेव वापस जाता था. एंड दिस अलाउड मी टू वर्क अ लॉट इन माय इनिशियल इयर्स एंड देन दैट गॉट मी टू प्रोजेक्ट्स व्हिच आई एम डूइंग नाउ. नहीं, आप ये नहीं कर सकते ना. इंडिया डेवलप कंट्री नहीं है. यहाँ पे हर बंदा, इन्फ्लेशन है, ग्रोथ आ रही है. आप ये नहीं कर सकते मैं काम नहीं करूंगा, मैं दूसरे से काम करूंगा. बट जब आपको सक्सेस व्हेन यू मेजर विद द मनी, यू वांट मनी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. यार बाकी जगह पे आप यूएस यूरोप के अंदर देखो, एवरीथिंग इज सेटल्ड. करेक्ट? एक तरीका है जिससे चीजें होती है. पीपल हैव इनकम, गवर्नमेंट हैज मनी की हेल्थ केयर सब चीजों का सपोर्ट रखती है. देन यू कैन लेवरेज दैट पर्टिकुलर टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हॉबीज,
inculcate new Also, I think if you look at activities. Europe also, post World War, entire Europe worked really hard to rebuild. Japan देख लो. Japan also. So I think they've also gone through that cycle. हमारा भी ये cycle है. अभी काम नहीं करेंगे जब पूरा building हो रहा है and you know the entire growth is coming. When we are a developed nation, maybe we don't need to work so hard. But I But- think right now we need to. देखो हमने हमारा रियलिस्टिक फैक्ट बता दिया, अब इसको कंट्रोवर्शियल हेडलाइन की तरह मत डाल. वो हम देख लेंगे. Guys, it's been such a pleasure talking to you. Before we let you guys go, one final question. This is something that Indian leaders have said. This is something that leaders of the West have said. India is the place to be in the next 10, 20, 30 years, especially for business owners and founders and entrepreneurs. What lies in the future आने वाले 10-20 साल में in this country? I think this is the brightest time for India because आप ये देखिए कि 2004 से हमारा ग्रोथ काफी ज्यादा है और ये कंटिन्यू करेगा अगले 20-25 साल and we are going to become a developed nation hopefully in that time. And also you look at it that look, what happens is there's an inflection point when the per capita income crosses that $4,000 $5,000 kind of a time. That's where there's a huge disposable income which is available, which makes very large businesses because suddenly you can discretionally invest in a lot of other things. तो अभी हम अगले 5-7 साल 8 साल में वो inflection point cross करेंगे and that's happened across. चाइना में भी वैसा ही हुआ and that's happened in Korea and other places. तो हम भी जब वो क्रॉस करेंगे आई थिंक दैट्स अ टाइम व्हेन यू विल सी दैट सडनली वेरी लार्ज बिजनेसेस कैन बी बिल्ट. तो हम एकदम ही राइट टाइम पे अभी जो स्टार्ट करेगा एंड सस्टेन करेगा अगले 10-15-20 साल, दे कैन हैव एक्चुअली अ वेरी वेरी लार्ज बिजनेस. Okay, that's a fact. मतलब अगर if you see everybody is looking up to India, like, there is nothing else except India. Power of India is our people, our youth. और अगर हमारा यूथ 70 घंटे काम नहीं करेगा तो हम कैसे ग्रो करेंगे? There's a headline. Guys, अब तक हमने जितने पॉडकास्ट शूट किए हैं in our series The Hot Seat, this has been one of the most fun ones. Thank you so much for talking to us and giving us your time. I hope आप लोगों को भी अच्छा लगा. नहीं बहुत मजा आया. मजा आया. Thanks a And lot, I यार. think जो मैंने शुरू में भी बोला था, इतनी डीप रिसर्च करके आज तक I have not seen the questions, like the amount of effort what you have put in मेरी वाइफ के बारे में मालूम है. और अब आपको बस उतना ही पता है और कुछ नहीं पता. नहीं, अब आप लोगों को पता भी है क्यों इनकी शादी 6 साल लेट हुई. But that has been like really well researched and great talking to you. It was fun actually. Absolutely, likewise. Thank you so much, guys. आप लोग नो ब्रोकर्स पे कमाल का काम since the last decade कर रहे हैं. I am dead sure कि आने वाले टाइम में भी it will keep getting more and more path breaking. Good. Thank Thank you. you. very much. Thank you. Guys, this was so much fun. Do write in the comments कि ये बहुत ही entertaining episode आप लोगों को कैसा लगा. And of course, subscribe to our newest channel, The Hot Seat by AIM Media. This is me, your friend Korak. See you in the next podcast.